Dear students, myself Dr. Jipti Srivastav, Associate Professor, Government Dungar College, Bikaner. Today we will discuss on respiratory system in insects. Mainly two types of respiration occur for insects: terrestrial respiration and aquatic respiration. Insect tracheal respiration, in short, oxygen enters from spiracles into tracheae, then tracheoles, and finally reached into cells. Components of respiratory system: spiracle, tracheae, tracheoles, tracheoblasts, and air sacs. Spiracles have a chamber or atrium with a opening and closing mechanism called atrial valve. This regulates air passage and minimize water loss. Each spiracle is set in a sclerotized cuticular plate called a peritrim. The ringed appearance of the trachea is due to the spiral ridges called tenidia. This allows the trachea to be flexible but resist compression. The cuticular linings of the trachea are shed during molting. Tracheoles are less than 1 μm in diameter, and they blindly and closely contact the respiring tissues. In the trachea, thin-walled collapsible sac-like dilations are present called as air sacs, where tenidia is absent. Air sacs act as oxygen reservoir, provide buoyancy to flying and aquatic insects, provide space for growing organs, acts as sound resonator and heat insulators. स्पाइरेकल्स में एक चैम्बर या एट्रियम होता है, उसमें ओपनिंग तथा क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है जिसे एट्रियल वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व स्पाइरेकल की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। स्पाइरेकल्स के कारण एयर पैसेज रेगुलेट होता है और इसके कारण इंसेक्ट की बॉडी से वाटर लॉस बहुत कम होता है। प्रत्येक स्पाइरेकल एक स्क्लेरोटाइज्ड क्यूटिकुलर प्लेट पर स्थित होता है जिसे पेरिट्रीम कहते हैं। ट्रैकियाई की रिंग्ड अपीयरेंस उसके स्पाइरल रिज के कारण होती है। ये स्पाइरल रिजेस को टीनिडिया बोलते हैं। टीनिडिया के कारण ट्रैकिया फ्लेक्सिबल हो जाती है और ये कंप्रेशन के दबाव के प्रति प्रतिरोधी होती है। ट्रैकिया की क्यूटिकल लाइनिंग मोल्टिंग के दौरान अलग हो जाती है। ट्रैक्योल्स डायमीटर में 1 μm से कम होते हैं तथा ये रेस्पायरिंग टिश्यूज़ के क्लोजली कांटेक्ट में होती हैं। ट्रैकिया में थिन वॉल्ड सैक लाइक उभार पाए जाते हैं जिन्हें एयर सैक्स कहते हैं। ये एयर सैक्स उन जगह होते हैं जहाँ पर टीनिडिया नहीं होते। एयर सैक्स ऑक्सीजन रिजर्वायर का कार्य करते हैं। ये फ्लाइंग तथा एक्वेटिक इंसेक्ट्स को बायोएंसी प्रदान करते हैं, ग्रोइंग ऑर्गन्स के लिए स्पेस प्रदान करते हैं,
साउंड रिजोनेटर तथा हीट इंसुलेटर्स का काम करते हैं। तो स्पाइरेकल्स क्या हैं? स्पाइरेकल्स आर रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स फाउंड ऑन द thorax and abdomen of insects. The spiracles are connected to trachea tubes within the insect's body. Air enters the trachea via the spiracles and the oxygen then diffuses into the insect's body. Spiracle is the external opening through which air enters into the trachea. Insects have about 10 pairs of openings called spiracles in their exoskeletons. It has a chamber or atrium with a opening and closing mechanism called atrial valve. Spiracle is surrounded by a scleroid called peritreme. Closing and opening of spiracle is regulated by atrial valve. In dipterans, coleopterans, lepidopterans, spiracles consist of sieve plate. Peristigmatic glands present around the spiracle that prevents the wetting of organs. Types of spiracles. First, simple spiracles. They are tubular and open directly from exterior to the lumen of trachea. Example, Thysanura. Second, atriate spiracles. Spiracles open first into the cavity or tubular chamber, the atrium, containing sieve plate or hairs and with peristigmatic glands. It bears external opening called the atrial orifice, which may be simple or provided with a valve. They are found in various pterygotes. Third, bichambered spiracles. The spiracular cavity is divided into two chambers, anterior and posterior. The posterior chamber is called the occluding chamber and it bears internal closing apparatus. They are represented by abdominal spiracles of the ants. Biferous spiracles. The spiracles bear two external openings which are secondarily developed while the primary atrial orifice is closed. They occur in the larvae of Coleoptera. Multifirous spiracles. The spiracles have more than two openings found in the third instar larvae of Cyclorrhapha diptera. तो स्पाइरेकल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सिंपल स्पाइरेकल्स जो कि ट्यूबुलर होते हैं और जो बाहर से सीधे ट्रैकिया की ल्यूमन में खुलते हैं। थाइजेन्यूरा में इस तरह के स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। सेकंड, एट्रिएट स्पाइरेकल्स। ऐसे स्पाइरेकल्स जिनमें एट्रियम प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे एट्रिएट स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स सबसे पहले एक कैविटी या ट्यूबुलर चैम्बर में खुलते हैं जिसको एट्रियम बोलते हैं। इस एट्रियम में एक छल्ली नुमा प्लेट प्रेजेंट होती है, सीव प्लेट या हेयर्स उपस्थित हो सकते हैं तथा यहाँ पर पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड्स होती हैं। इट बियर्स एक्सटर्नल ओपनिंग्स कॉल्ड द एट्रियल ऑरिफिस। इसके बाहर की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसे एट्रियल ऑरिफिस बोलते हैं। यह सिंपल हो सकती है या वहाँ पर वॉल्व उपस्थित हो सकता है। इस तरह के स्पाइरेकल्स कई टेरिगोट इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। तो एट्रियम में सीव प्लेट या हेयर्स की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जब एयर पहुँचती है वो एक तरह से फिल्टर होकर पहुँचती है। थर्ड, बाई चैम्बर्ड स्पाइरेकल्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ इन स्पाइरेकल्स में दो चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। दी स्पाइरेकुलर कैविटी दो चैम्बर्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर
चैम्बर तथा पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर को ओक्लूडिंग चैम्बर कहते हैं और इसमें इंटरनल क्लोजिंग apparatus प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स, एंड्स के एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स बाई चैम्बर्ड स्पाइरेकल्स होते हैं। बाईफिरस स्पाइरेकल्स, जब स्पाइरेकल्स में दो एक्सटर्नल ओपनिंग्स हों तो उन्हें बाईफिरस स्पाइरेकल्स कहते हैं। ये दो ओपनिंग्स द्वितीयक रूप से विकसित होती हैं। जब प्राइमरी एट्रियल ओरिफिस बंद हो जाता है तो द्वितीयक रूप से दूसरी ओपनिंग बन जाती है। इस तरह के स्पाइरेकल्स कोलियोप्टेरा के लार्वी में मिलते हैं। मल्टीफिरस स्पाइरेकल्स, नाम से पता चल रहा है मल्टी का मतलब कई। अगर स्पाइरेकल्स में दो से ज़्यादा ओपनिंग्स हों तो ऐसे स्पाइरेकल्स को मल्टीफिरस स्पाइरेकल्स कहते हैं। और ये डिप्टेरा के एग्जाम्पल साइक्लोरैफा के थर्ड इंस्टार लार्वी में पाए जाते हैं। ये देखिए एक स्पाइरेकल है जिसमें वॉल्व, एट्रियम तथा डस्ट फिल्टर या सी प्लेट मौजूद है। बाहर एट्रियल ओपनिंग, ये खुली एट्रियम में दिखाई दे रहे हैं डस्ट फिल्टर। उसके बाद एट्रियम खुलेगी ट्रैकिया में, यहाँ पर फिर हमें वॉल्व दिखाई दे रहा है, स्पाइरेक्युलर वॉल्व, जिसके कारण से एट्रियम और ट्रैकिया के बीच की ओपनिंग जो है उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग रेगुलेट होती है। ये बाई चैम्बर्ड स्पाइरेकल है। यहाँ पर दो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, एट्रियल चैम्बर तथा ओक्लूडिंग चैम्बर। ये बाईफिरस तथा मल्टीफिरस स्पाइरेकल्स हैं, यानी बाईफिरस स्पाइरेकल्स जिसमें बाहर की तरफ दो ओपनिंग्स हैं। तो यहाँ पर एट्रियल ओरिफिस या दो ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं, प्राइमरी एट्रियल ओरिफिस तथा सेकेंडरी एट्रियल ओरिफिस, और दो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से मल्टीफिरस स्पाइरेकल्स, यहाँ पर कई सारी ओपनिंग्स हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स दो से ज़्यादा हैं। इस डायग्राम में हम डिफरेंट टाइप्स के स्पाइरेकल्स और उनके क्लोजिंग मैकेनिज्म को देख रहे हैं। वहाँ पर वॉल्व्स तथा एट्रियम किस तरीके के हैं। देखिए पहले हमें नॉन वॉल्व्ड तथा नॉन एट्रिएट स्पाइरेकल दिखाई दे रहा है, यानी कि एकदम सिंपल प्रकार के स्पाइरेकल हैं ये, जो कि सीधे ट्रैकिया में खुल रहे हैं। फिर बीच में जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पर एट्रियम दिखाई दे रहा है, यानी कि स्पाइरेकल एट्रियम में खुलता है। एट्रियम में फिर डस्ट फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं, डस्ट कैचिंग सीटी दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब ये एट्रियम जो है वो ट्रैकिया में खुल रहा है। फिर हमें एक और ये दिखाई दे रहा है स्पाइरेकल जिसमें कई फिल्टर चैम्बर्स हैं, एट्रियम भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से सिंपल तरीके से अगर हम स्पाइरेकल्स की बात करें कि किस तरह के स्पाइरेकल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक स्पाइरेकल ऐसा होता है जो कि नॉन वॉल्व्ड होता है, जिसमें वॉल्व नहीं होते। एट्रियम हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। फिर वाल्व अगर हो तो उस तरह के स्पाइरेकल उसमें भी एट्रियम हो सकता है तथा
नहीं हो सकता। और फिर अंदर की तरफ इंटरनल वॉल्व हो तो उसमें भी एट्रियम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो नॉन वॉल्व्ड, एक्सटर्नल वॉल्व्ड एंड इंटरनल वॉल्व्ड, इस तरह के स्पायरेकल्स, और उसमें फिर नॉन एट्रिएट एंड एट्रिएट। एट्रियम के क्या फंक्शंस हैं? एयर फिल्ट्रेशन, atrium filters the dust and pollen from air. Second, water conservation. Third, glandular secretions and acoustic or help in courtship. Trachea. The trachea are the larger tubes of the tracheal system. These are ectodermal in origin, consist of epithelial cells or ectotrachea and cuticular lining called intima. Helical folds of cuticle lining known as tenidia. Tracheoles. It is less than 1 millimeter in diameter and they end blindly and closely contact with the respiring tissues. Gaseous exchange occurs across tracheoles. Tracheoblast. The branches of tracheae and in polygonal cells known as tracheoblasts. These are consists of plasma lemma, cytoplasm and nucleolus. Air sacs. Balloon-like structures act as oxygen reservoir. They provide buoyancy to flying and aquatic insects. In dry terrestrial environments, this temporary air sac allows an insect to conserve water by closing its spiracles during periods of high evaporative stress. एयर सैक्स ऑक्सीजन रिजर्वायर की तरह काम करते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लाइंग तथा एक्वेटिक इंसेक्ट्स को बायोएंसी प्रदान करते हैं। ड्राई टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर इंसेक्ट्स हों तो उस समय एयर सैक्स इंसेक्ट को वाटर कंजर्व करने में मदद करते हैं। इस समय ये स्पायरेकल्स को हाई इवेपोरेटिव स्ट्रेस के समय बंद कर देते हैं, जिसके कारण से वाटर लॉस नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पर हम स्पायरेकल्स देख रहे हैं। फिर स्पायरेकल किस तरह से ट्रैकिया में खुलते हैं, ट्रैकिया में आगे ब्रांचेस ट्रैकियोल्स, और ट्रैकियोल्स कहाँ पर पहुँची? डिफरेंट टिश्यूज, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट सेल्स में। स्पायरेकल की बाहर की लाइनिंग हम देख रहे हैं, क्यूटिकल एंड हाइपोडर्मिस। फिर नेक्स्ट डायग्राम में हम यहाँ पर कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं। इसमें डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है वेंट्रल ट्रैकिया, डॉर्सल ट्रैकिया, थॉरेक्स में लेटरल साइड में ओपनिंग्स हैं, स्पायरेकल्स खुलते हैं वेंट्रल साइड में वेंट्रल ट्रैकिया में तथा डॉर्सल साइड में डॉर्सल ट्रैकिया में। फिर ये दोनों तरफ की जो ट्रैकिया है, लॉन्गिट्यूडनल जो ट्रैकिया हैं, ये आपस में कमीशर द्वारा जुड़ी रहती हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ग्रासहॉपर और cockroach may be divided into following heads: longitudinal tracheal trunks, transverse tracheal trunks, air sacs and tracheoles. And longitudinal tracheal trunks, there are 3 pairs of longitudinal trunks present, namely lateral tracheal trunks,
डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक्स एंड वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक्स। जैसा कि हमने पहले डायग्राम में देखा कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक्स हैं वो 3 में डिवाइडेड हैं। लेटरल साइड में लेटरल ट्रैकियल ट्रंक्स, डॉर्सल साइड में डॉर्सल ट्रैकियल और वेंट्रल साइड में वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक। और उसके बाद ये जो ट्रंक्स हैं ये आपस में जुड़ी रहती हैं ट्रांसवर्स ट्रैकियल ट्रंक्स द्वारा। इन ट्रंक से ब्रांचेस निकलती हैं ट्रैकियोल्स, और ट्रैकियोल्स जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर एयर सैक्स भी प्रेजेंट है, और ट्रैकियोल्स की एकदम महीन जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट सेल्स तक पहुँचती हैं। यहाँ पर थॉरैक्स रीजन का टीएस देख रहे हैं जिसमें ट्रैकियल अरेंजमेंट पता चल रहा है। तो इस तरह से ये पूरा ट्रैकियल सिस्टम है। एक्सटर्नल ओपनिंग या स्पाइरेकल जो कि बॉडी वॉल में उपस्थित छिद्र हैं या पोर्स हैं, ये खुले ट्रैकिया में, ट्रैकिया, फिर ट्रैकियोल्स में, और ट्रैकियोल्स फिर मसल्स या दूसरे सेल्स में। Now classification of tracheal system. Kaelin 1944 and Hinton 1947 proposed scheme of classification of the tracheal system on the basis of functional spiracles. Functional spiracles या क्रियात्मक स्पाइरेकल्स के आधार पर ट्रैकियल सिस्टम का क्लासिफिकेशन केलिन तथा हिंटन द्वारा दिया गया। सबसे पहली टाइप है पॉलीप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम। नाम से पता चल रहा है, पॉली का मतलब होता है कई। इट रिप्रेजेंट्स द ओपन ट्रैकियल सिस्टम एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स। फर्स्ट, होलोप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम। दिस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ all 10 pairs of functional spiracles found in nymphs and adults of large number of hemimetabola. इसमें सभी स्पाइरेकल्स यानी कि सभी 10 पेयर्स स्पाइरेकल्स के सभी फंक्शनल होते हैं। हॉलो का मतलब कंप्लीट। तो सारे अगर स्पाइरेकल्स फंक्शनल हों तो ऐसे ट्रैकियल सिस्टम को होलोप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और यह इस तरह का जो ट्रैकियल सिस्टम है वो निम्स में तथा हेमीमेटाबोलक इंसेक्ट्स की कई इंसेक्ट्स में पाया जाता है। सेकंड, हेमीप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम। Only 8 pairs of spiracles, the mesothoracic and first 7 abdominal spiracles are functional, whereas other pairs are non-functional. Example, mostly in the larvae. इसमें केवल 8 पेयर्स स्पाइरेकल्स के फंक्शनल होते हैं। एक पेयर मेसोथोरेसिक स्पाइरेकल तथा फर्स्ट 7 एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स, जबकि दूसरे स्पाइरेकल्स नॉन फंक्शनल होते हैं। अधिकतर लार्वी में हेमीप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट, पेरीप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम। 9 pairs of spiracles are functional, while only a single pair located on the metathorax is known as functional, as found in terrestrial larvae of Neuroptera, Mycoptera, Lepidoptera, Symphyta, etc. यहाँ पर
मेटाथोरेक्स का एक सिंगल पेयर तथा दूसरे 8 पेयर्स एब्डोमिनल पेयर्स जो हैं वो फंक्शनल होते हैं। इस तरह के स्पायरेकल्स न्यूरोप्टेरा के लार्वी, मेकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा तथा सिम्फाइटा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है ओलिगोपन्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम। इट रिप्रेजेंट्स पार्शियल ओपन ट्रैकियल सिस्टम। It is further divided into 3 subtypes. First, amphipneustic tracheal system. Only 2 pairs of spiracles, first thoracic and last abdominal, are functional as found in the larvae of Diptera. Next, metapneustic tracheal system. Only a single pair of spiracles, the last abdominal, is functional as found in larvae of Culicidae, Tipulidae and aquatic coleopteran larvae. Propneustic tracheal system. Only a single pair of spiracle, the first pair of mesothorax, is open or functional. Example, pupae of Diptera. The apneustic tracheal system. It represents the closed respiratory system. All pairs of spiracles are closed and non-functional. Oxygen is absorbed by skin or gills as found in various aquatic and endoparasitic larvae. apneustic tracheal system में सारे के सारे स्पायरेकल्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं तथा नॉन फंक्शनल होते हैं। इसलिए ऑक्सीजन स्किन या गिल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। Hypopneustic tracheal system. It represents partially degenerated tracheal system in which 1 or 2 pairs of spiracles disappear completely and insect therefore bears often less than 10 pairs of spiracles as found in Melophaga and Siphunculata, 1 pair of thoracic and 6 pairs of abdominal. Thysanoptera, 2 pairs of thoracic and 2 pairs of abdominal. हाइपोपन्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम में 1 या 2 पेयर स्पायरेकल्स के पूर्णतः डिसअपियर हो जाते हैं। इस तरह से इंसेक्ट में स्पायरेकल्स की संख्या 10 पेयर से कम होती है। जैसे कि मेलोफेगा तथा साइपनक्यूलेटा में 1 पेयर थोरेसिक स्पायरेकल तथा 6 पेयर्स एब्डोमिनल स्पायरेकल्स के होते हैं। थाइजेनोप्टेरा में 2 पेयर्स थोरेसिक तथा 2 पेयर्स एब्डोमिनल स्पायरेकल्स के होते हैं। हाइपरप्न्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम. It shows presence of more than standard number, that is 10 pairs of spiracles. इसमें नॉर्मल 10 पेयर्स ऑफ स्पायरेकल्स से ज़्यादा स्पायरेकल्स की संख्या होती है। जैसे कि डाइप्लूरा जैपिक्स में थोरेक्स में 4 पेयर स्पायरेकल्स के तथा एब्डोमेन में 7 पेयर्स, इस प्रकार कुल मिला के 11 पेयर्स स्पायरेकल्स के प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओपन और क्लोज स्पायरेकल टाइप्स की बेसिक वेरिएशंस इन डायग्राम्स में दिखाई दे रहे हैं। होलोपन्यूस्टिक मतलब सारे के सारे स्पायरेकल्स ओपन हैं। मेटापन्यूस्टिक केवल एक स्पायरेकल ओपन है। एपन्यूस्टिक में सारे के सारे स्पायरेकल्स बंद हैं। ये सारे के सारे क्यूटिकल में प्रेजेंट हैं। फिर एपन्यूस्टिक, इसमें प्लेट गिल्स पाए जाते हैं और स्पायरेकल्स क्लोज्ड हैं।
और एपन्यूस्टिक रेक्टल गिल्स जो कि पीछे की तरफ जो गिल्स पाए जाते हैं, रेक्टल गिल्स, वो प्रेजेंट हैं और सारे के सारे स्पायरेकल्स क्लोज्ड हैं। तो आज हमने इंसेक्ट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। थैंक यू।